Hello guys, I am Dr. Satkala. I welcome you all in our English lecture class. In this class, our today's topic is use of articles. Where will article not used? In the series of determiners, this is our third videos on articles. First was on indefinite article, second on definite article, and third is this one, that is where there is no need of articles. Sometimes we saw that we use a, an, they, and in sometimes there is no need of articles of a, an, and they. And this video is related to no use of articles, no requirement of articles. For the use of definite and indefinite articles, you can watch my previous videos. Let us start with where there is no need of articles. First and most important, that no need to use they with the names of countries. Name of, because we read that there is no need with the proper nouns. Name of any person, place, countries is the name of place. But in some exceptional cases like United Republic and in plural we use they. But except to these cases there is no need, no requirement of the articles or a and an. Like Germany is an important economic power. Germany is the name of country, there is no requirement of articles. He just returned from Zimbabwe. Zimbabwe is the name of country and there is no need of articles because name of these countries are neither plurals and nor particular, significant, and neither use of the words United and Republic. Use second, don't use they with the names of languages. Never use they with the name of languages and subject. French is spoken in many countries. French is the name of language, there is no need of articles. English uses many words of Latin origin. English here is language. Indonesian is a relatively new language. Indonesian means the language spoken in Indonesia, that is Indonesian, because in last there is language. We can use they if we are talking about people. For example, for French is spoken in many countries. Here if we are talking about French people, then we can use they. The French people speak French language. The English culture is not similar to our culture. If we are talking about people, then we can use they. But if we talking about language, अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे they का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं होगा. अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लोग, फ्रेंच लोग, इंडोनेशियन लोग, तो हम वहाँ पे they का यूज कर सकते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष केस में, सिग्निफिकेंट केस में हम अगर उनका जिक्र कर रहे हैं. ऐसे ही फर्स्ट वाला है, कंट्रीज़ के नेम के साथ हम नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं दे का जब वो कोई या तो प्लूरल में हो या फिर उनके साथ में यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, ऐसे वर्ड्स जो हैं उनके साथ में जुड़े होते हैं तभी. नेक्स्ट, डोंट यूज़ दे विद द नेम्स ऑफ मील्स. मील्स के साथ में भी खाने की जब बात होती है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, देर इज़ नो नीड ऑफ आर्टिकल्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन simple in general talk. Lunch is my favorite meal. I like to take breakfast early. Don't use they with people's names. People's name there is no need of if we are in general talk. John is coming over later. Mary Carpenter is my
boys. Here John and Mary Carpenter, these are the name of people. When we use articles, you can watch my previous video. Next, don't use the with titles when combined with names. टाइटल के साथ में अगर नेम जो है वो कंबाइन है तो उस केस में भी हम यूज नहीं करते. प्रिंस चार्ल्स इज़ क्वीन एलिजाबेथ सन. अब यहाँ पे प्रिंस जो चार्ल्स जो नेम है वो क्वीन एलिजाबेथ जो टाइटल है उसके बेटे के साथ में उसका जो बेटा है तो टाइटल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उस केस में भी हम दे का यूज नहीं करते. प्रेसिडेंट कैंडी वॉज असैसिनेटेड इन डैलास. तो यहाँ पे भी जो टाइटल जो है नेम के साथ में जुड़े हैं तो वहाँ हम उसका यूज नहीं करेंगे. पर्सन के नाम के साथ में कब करेंगे? जब वो प्लूरल में होगा और जब वो अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. डोंट यूज़ दे आफ्टर पजेसिव केस. अगर पजेसिव केस हैं उसके बाद में जो हमारी नाउन आ रही है उसके साथ में भी हम दे का यूज नहीं करेंगे. हिज ब्रदर्स कार वॉज स्टोलन. यहाँ पे ब्रदर्स कि कौन सा केस है? पजेसिव केस है. हिज ब्रदर्स, उसके भाई की जो कार है वो स्टोलन, वो चोरी हो गई थी. तो कार के साथ में यहाँ पे दे का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कार जो है उससे पहले हमारा पजेसिव केस से आ रहा है. पीटर्स हाउस इज़ ओवर देर. इन द सेम केस हाउस से पहले भी हम दे का यूज नहीं करेंगे. पीटर्स हेयर इज़ पजेसिव केस. पजेसिव केस वो होता है जो रिलेशन दिखाता हमारा किसी भी थिंग्स के साथ में, किसी पर्सन के साथ में, किसी प्लेस के साथ में, दैट इज़ पजेसिव. तो यहाँ भी हम उस पजेसिव केस के बाद नाउन आ रही है उसके साथ में भी हम दे का यूज नहीं करेंगे. डोंट यूज दे विद प्रोफेशंस. प्रोफेशंस के साथ में भी हम दे का यूज नहीं करेंगे. लाइक इंजीनियरिंग इज़ अ वेल पेड कैरियर. कि इंजीनियरिंग जो है एक वो वेल पेड एक अच्छा कैरियर है जिससे हमें जो पेड है, जो हमें अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी होती है. तो इंजीनियरिंग है, मेडिसन है, टीचर है, इस टाइप के जो प्रोफेशन है उस केस में हम दे का यूज नहीं करते. डोंट यूज़ दे विद नेम्स ऑफ सोप. अगर सोप्स के नाम हैं उनसे पहले भी हम दे का यूज नहीं करते. आई विल गेट द कार्ड्स एट स्मिथ्स. स्मिथ्स कार्ड हम कहाँ से मिलेंगे? आई विल गेट द कार्ड. कार्ड हम कहाँ लेंगे? एट स्मिथ्स. स्मिथ्स हेयर मीन्स द नेम ऑफ द सोप. स्मिथ्स की मतलब उसकी सोप से. कैन यू गो टू बूट्स फॉर मी. क्या आप बूट्स के वहाँ जा सकते हो? फॉर मी मेरे लिए. तो यहाँ पे जो बूट्स हैं, स्मिथ्स है, ये क्या है? उनकी सोप से मतलब है. तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. डोंट यूज दे विद ईयर्स. ईयर्स के साथ में भी हम 1948 वॉज ए वंडरफुल ईयर. ही वॉज बोर्न इन 1995. वो 1995 में उसका जन्म हुआ और 1948 जो थी वो एक वंडरफुल ईयर थी, एक अद्भुत जो है साल थी. तो इस केस में भी हम जहाँ भी ईयर है उनके साथ में भी हम दे का यूज नहीं करेंगे. डोंट यूज़ दे विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल आर दोज नाउन्स दैट वी कांट काउंट. जैसे राइस है, मिल्क है. राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड इन एशिया. एशिया के अंदर जो राइस है उसको इम्पोर्टेंट फूड का दर्जा है. मिल्क इज़ ऑफन एडिड टू टी इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के अंदर जो है टी बनाते हैं उसमें हम मिल्क को ऐड करते हैं. वॉर इज़ डिस्ट्रक्टिव. वॉर हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है. तो वॉर है, मिल्क है, राइस है, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल बिकॉज वी कांट काउंट दैट दिस 1 2 3 4 इन दिस वे. तो दीज आर अनकाउंटेबल nouns. This is all about no use of articles. May you like it, may you helpful in each and every exams in your future. You can watch my previous videos for this complete topic of articles. These are divided in 3 videos, one on definite articles, one on indefinite, and this one is on where and when there is no need of articles. Thanks a lot. If you like it, please subscribe, like and share my video. Thanks again.